Hello everyone, welcome to the Manu Vlog classes in the session of daily news analysis. Today is 8th of April 2024. You are watching with Naresh Sharma. Guys, first of all, we are going to revise our previous day session with the help of MCQs. So, in the last session, we discussed about the repo rate. So, now you have to answer the question that what is repo rate? Question number 1. Repo rate is the rate at which. Guys, try to answer the question before I provide you the correct answer. So be fast. So option 1, RBI lends money to the commercial banks. If we talk about repo rate, तो ये क्या है? It means RBI lends money to the commercial banks or RBI borrows money from the commercial banks. RBI lends money to the capital market. RBI borrows money from the capital market. So, guys, the correct answer is RBI lends money to the commercial banks. For example, person A went to HDFC Bank and asked for a loan. Okay. Then HDFC जब प्रोवाइड करेगी किसी लोन को तो उस पर एक रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, जिसको हम रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल देते हैं कॉमन टर्मिनोलॉजी में. बट इफ HDFC goes to RBI and asks for loan from RBI, when RBI gives loan to a commercial bank, then its rate of interest, some charges, is called repo rate. तो इससे क्लियर हुआ कि आरबीआई का जो रेपो रेट है, जब आरबीआई मनी लैंड करती है कॉमर्शियल बैंक्स को, उस रेट को हम रेपो रेट कहते हैं. और दूसरी बात, आरबीआई इज ऑल्सो नोन एज बैंक ऑफ द बैंक्स. जैसे कॉमन पीपल बैंक्स के पास जाते हैं लोन लेने के लिए, वैसे ही आरबीआई के पास जाती है जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं. फॉर एग्जाम्पल HDFC, SBI, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक या और भी जितनी बैंक्स हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द करेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई? Yesterday we also discussed about this current affair. In that article, there was the name of RBI governor mentioned in that same article. So now you have to reply that who is the current governor of the RBI. So it's Shaktikant Das, Rajiv Kumar, Rajiv Goyal, Urjit Patel. The correct answer is Shaktikant Das. He is the current governor of RBI, Reserve Bank of India. Now you have to answer, the Reserve Bank of India was founded in the year. रिजर्व ऑफ बैंक ऑफ इंडिया का फाउंडेशन किस ईयर में हुआ? 1 मार्च 1935, अप्रैल 1 1945, अप्रैल 1 1935, जनवरी 1 1955. Guys, the correct answer is April 19 and 35. April 1st 1935 is the day when RBI was founded through the RBI Act. One more important information here is that the financial year of India starts from the 1st April to 31st of March. So this question has been asked multiple times in various examinations. So please note it down and it will help you to make one more important point to attempt in the examination. Question number 4. Repo rate is used by monetary authorities to control inflation. तो रेपो रेट और क्या है? रेपो रेट है ये जो मॉनेटरी अथॉरिटीज हैं लाइक आरबीआई, वो यूज करती हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इन द इवेंट ऑफ हाई इन्फ्लेशन सेंट्रल बैंक्स. तो जब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट इज यूज्ड बाय द मॉनेटरी अथॉरिटीज लाइक आरबीआई, देन हाउ इट वर्क्स. तो जो रेपो रेट है वो कैसे वर्क करती है जब हाई इन्फ्लेशन होता है? जब भी इन द इवेंट ऑफ
हाई इन्फ्लेशन सेंट्रल बैंक क्या करेगी? इंक्रीज द रेपो रेट, डिक्रीज द रेपो रेट, repo rate has no impact on inflation, none of the above is relevant. Guys, the actual answer is, the correct answer is increase the repo rate. What is the logic behind increasing the repo rate in the case of high inflation? देखो, यदि कोई बैंक आरबीआई से लोन देता है, सपोज करो एसबीआई ने आरबीआई से लोन लिया और आरबीआई की पहले जो रेपो रेट था, सपोज करो इट वाज 10%। अगर आरबीआई को लगता है कि मार्केट में इन्फ्लेशन इज वेरी हाई या इन्फ्लेशन इज कंटिन्यूसली राइजिंग, देन आरबीआई विल टेक स्टेप टू इंक्रीज द रेपो रेट। वो रेपो रेट को इंक्रीज कर देगा। मींस जो 10% पर लोन मिल रहा था एसबीआई को, अब आरबीआई इस लोन का हो सकता है 15% पर इस लोन को कर दो। इट्स जस्ट फॉर एग्जांपल। अब देखो, जब एसबीआई को ऊपर से लोन मींस महंगा मिल रहा है, तो अब सपोज करो कोई पी नाम का पर्सन अब एसबीआई के पास जाएगा कि सर हमको लोन दे दीजिए। तो जब एसबीआई को 10% पर ऊपर से पैसा आया था, तो हो सकता है कि वो आपको 15% पर लोन दे देता रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। लेकिन जब उसके खुद के पास ही 15% पर उन्होंने लोन लिया है आरबीआई से, तो अब वो क्या करेगी एसबीआई? इट विल increase its rate of interest and it may charge around 20% because 5% का मार्जिन तो ये भी लेकर के चलेंगे। तो अब ये जो पी था, जब इसको पहले सपोज करो कि 15% पे लोन मिल रहा था, तो ये आराम से पहुंच जाता इजीली, अरे चलो यार 15% कोई महंगा नहीं, ले लेते हैं। लेकिन जैसे 20% हुआ तो ये क्या सोचेगा, नहीं यार बहुत महंगा है, चलो लोन नहीं लेते हैं। अब ये तो 1% का एग्जाम्पल लिया हमने, वैसे ही यहाँ पर हम करोड़ ऑफ पीपल्स की बात कर सकते हैं। तो उसका होगा क्या कि जब एसबीआई या अदर बैंक्स उनको महंगा, ठीक है, कॉस्टली लोन अगर मिलेगा तो वो कॉस्टली उसको आगे भी ट्रांसफर करेंगे। जब लोगों को महंगा लोन मिलेगा तो लोग कम लोन लेंगे। इट मीन्स लोगों की पॉकेट में मनी कम आएगा। अब आप इसको मीन्स अगर ज्यादा डिटेल में समझेंगे तो हम इसको इकोनॉमी की क्लासेस में समझेंगे। तो इट मीन्स आप ऐसे समझिए कि जब भी लोन महंगा होगा उससे इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, क्योंकि यहाँ पर एक पर्सन नहीं है, पर्सन यहाँ पर हम ओनली पीपल की बात नहीं कर रहे, बट हम ऑल्सो कंपनीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, व्हाट इज LAF इन बैंकिंग टर्मिनोलॉजी? कल हमने इसके बारे में भी डिस्कस किया था कि इसका भी हमने जो है कल थोड़ा सा मेंशन किया था LAF का। इकोनॉमी में इससे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। व्हाट इज LAF इन बैंकिंग टर्मिनोलॉजी? Liquidity Adjustment Facility, Liquidity Advance Facility, Liquidity Action Federation, Liquidity Adjustment Facility. Actually, the correct answer is Liquidity Adjustment Facility. Liquidity Adjustment Facility, ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है। ये क्या है Liquidity Adjustment Facility? इसमें there are various tools with the RBI. आरबीआई के पास में बहुत सारे टूल्स होते हैं। मींस जब भी मार्केट में लिक्विडिटी इंक्रीज होगी, हियर लिक्विडिटी मींस अवेलेबिलिटी ऑफ कैश और मनी। मींस मार्केट में लोगों के पास, बैंक्स के पास अगर लिक्विडिटी ज्यादा है, इट मींस मनी ज्यादा अवेलेबल है, तो उसको आरबीआई एडजस्ट करती है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के थ्रू। उसमें आरबीआई बहुत सारे वेरियस जो टूल्स होते हैं उनका यूज करती है। मींस वो कुछ ऐसे टूल्स करेगी, कई बार मार्केट से पैसे को वापस अपनी तरफ लेकर के आएगी अगर उनको इन्फ्लेशन ज्यादा दिख रहा होगा, और अगर उनको लग रहा होगा कि इन्फ्लेशन बहुत कम है, तो मार्केट में डिमांड ही नहीं है लोगों की तरफ से, तो वो क्या करेगी आरबीआई, उसके थ्रू फिर जो रेपो रेट वगैरह होंगे उनको कम करेगी। सो दिस इज द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जिसमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है लिक्विडिटी के मीडियम से। क्वेश्चन नंबर 6, द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इज अ कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यस, एंड द सेंट्रल बैंक। सो एक बात तो यहाँ पर ये क्लियर हो गई आपके लिए कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को जब कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक दोनों ही इसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। दिस कमेटी इज हेडेड बाय, इसका हेड कौन होता है इस कमेटी का?
First of all, just have a basic information about Monetary Policy Committee. मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है जो रेपो रेट वगैरह जो होते हैं, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी होती है, उन सब पर ये फैसला लेते हैं, डिसीजंस लेते हैं, जिसमें कई सारे मेंबर्स होते हैं। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के भी मेंबर्स होते हैं और सेंट्रल बैंक के भी इसमें मेंबर्स होते हैं। सेंट्रल बैंक हियर आरबीआई। तो इसका हेड कौन होता है? इसका हेड होता है गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं वो इसके कौन होते हैं? हेड होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के। तो कैन यू आंसर मी दैट हु इज द गवर्नर ऑफ आरबीआई? आरबीआई का इस समय गवर्नर कौन है? बता दीजिए फिर क्या फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज द यूएनएचआरसी स्टैंड फॉर? तो यूएनएचआरसी का कल हमने डिस्कस किया था लास्ट सेशन में, बिकॉज उसमें हमने बात की थी इजराइल और हमास का जो अभी वॉर वाला पैटर्न चल रहा है, उसमें ह्यूमन राइट्स वायलेशन को लेकर के हमने डिस्कस किया था कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल, दैट इज यूएनएचआरसी, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल, उन्होंने अभी एक रेजोल्यूशन लिया और उस रेजोल्यूशन में इन्होंने क्या किया, इस तरह के कुछ रेजोल्यूशन लिए, उसमें कमिटमेंट किए और कंट्रीज से कहा कि आप इजराइल को वेपन्स या जो आर्म्स हैं वो भी ना सेल करें, ना उनको आप वहाँ के लिए उनको सप्लाई करें, और प्लस जो इजराइल है जो अपने वार एफर्ट्स हैं उनको तुरंत इमीडिएट सीज फायर करे, और वहाँ पर अगर किसी सिविलियन ह्यूमन राइट्स वालों का मीन्स ह्यूमंस का अगर उनकी राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो उसको इमीडिएट स्टॉप करे। इसकी वजह से यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल इज इन न्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, according to report released by the World Anti-Doping Agency WADA. Yesterday in the last session we also discussed about World Anti-Doping Agency and NADA. हमने दोनों के ही बारे में डिस्कस किया था, अगर आप रिकॉल कर पा रहे हैं, बिकॉज किसकी वजह से कि विच कंट्री रिपोर्टेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ डोपिंग केसेस इन द वर्ल्ड, कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डोपिंग के केसेस कहाँ पर मिल रहे हैं। तो सबसे ज्यादा भैया अपना इंडिया जो है फ्रंट पर है। कि डोपिंग के केसेस मींस, ये डोपिंग के केसेस वो होते हैं व्हेन द स्पोर्ट्स पर्सन्स यूज सम ड्रग्स व्हिच इज नॉट ऑथराइज्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। जब ऐसे ड्रग्स को यूज करते हैं परफॉर्मेंस बूस्ट करने के लिए, ठीक है, तो उनको हम डोपिंग में फिर वो काउंट हो जाते हैं, उनके सैंपल्स वगैरह लिए जाते हैं। तो इंडिया में इस बार जो है डोपिंग के केसेस सबसे ज्यादा मिले हैं। जितने भी स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं उसमें से सबसे ज्यादा इंडिया में ऐसे लोग मिले जिन्होंने अपनी स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए स्पेशल जो ड्रग्स होते हैं उनका यूज किया। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, दैट इज नाडा, इट फंक्शंस अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री? कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री के अंदर में ये काम करती है नाडा एजेंसी? सो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। एक्चुअली द करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, बिकॉज स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी अफेयर्स होते हैं उनके लिए हमारे यहाँ अलग से एक मिनिस्ट्री बनाई गई है, दैट इज यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, और वो सब डील करती है। नाउ अब हमने कल के सेशन का रिवीजन कर लिया एमसीक्यू के थ्रू। नाउ वी आर गोइंग टू टुडेज इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो क्या क्या है? पहला देखो काफी इंपॉर्टेंट ये रहा कि नो इजराइल एम्बेसी इज सेफ वार्न्स ईरान। ईरान ने वार्निंग दी है इजराइल को कि भाई देखो अब तुम्हारी कोई भी जो एम्बेसी है वो सेफ नहीं है। अब हम मींस अब ये मत सोच करके बैठना कि तुम्हारी जो एम्बेसीज हैं वो बड़ी सेफ रहेंगी। क्यों, ऐसा क्या हुआ? बात ये थी कि इजराइल और हमास का जो वॉर चल रहा है, उधर में सीरिया भी बार बार बीच बीच में अटैक करता रहता है इजराइल की तरफ। तो सीरिया पर इजराइल ने अटैक किए, तो वहां पर कुछ रीजन में जो ईरान की एम्बेसी थी, ठीक है, उस पर भी अटैक हो गया और उसमें ईरान के कुछ ऑफिसर्स हैं उनकी डेथ हो गई। ठीक है, जनरली ये नियम होता है कि जो भी कहीं किसी कंट्री की एम्बेसीज वगैरह होती है उन पर अटैक नहीं किए जाते। बट अभी ना तो इजराइल ने ये कहा है कि जो है हमारे जो मिलिट्री फोर्सेस हैं उन्होंने अटैक किया था, या हमास के टेररिस्ट ने अटैक किया था, या किसी और का ही बम उनके ऊपर आकर के गिर गया और उससे
वो उनके ऑफिसर्स मारे गए या उनकी एम्बेसी डिस्ट्रॉय हो गई। इसराइल की जो इसराइल ने अटैक किए थे वो यहाँ बात हो रही है दमस्कस की, दमस्क, और दमस्क इज द कैपिटल ऑफ सीरिया। ठीक है, तो सीरिया में अटैक किए थे इसराइल ने, और वहां पर दमस्क नाम की जगह है, वहां की कैपिटल, वहां पर ये चीजें जो है उनकी एम्बेसी जो है डिस्ट्रॉय हो गई थी, किसकी, ईरान की, और उनके कई सारे टॉप जनरल मारे गए उसमें। तब ईरान ने कहा कि भाई तुम ये मत सोचना कि अब आपकी भी एम्बेसी कहीं भी सुरक्षित होंगी। फिर यहाँ पर एक बड़ा ही प्यारा सा आर्टिकल आया है, और आपके लिए, सबके लिए, पूरी सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल का मेन जो सब्जेक्ट है वो है सुसाइड। ठीक है, जो सुसाइड है वो ट्रेजिक और अनटाइमली लॉस है ह्यूमन लाइफ का, कि जिस व्यक्ति की डेथ किसी एक नेचुरल डेथ अदर टाइम में होने वाली थी, नेक्स्ट 10 ईयर्स में, 20 ईयर्स में होने वाली थी, उसने अपनी लाइफ को खुद से ही एंड कर लिया। ठीक है, अब अगर हम बात करें इंडिया की, तो वही अभी एनसीआरबी का जो डेटा आया है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, इसके डेटा के बेसिस पर अगर हम बात करें तो लास्ट 2022 में हमारे यहाँ 1.71 लाख पीपल ने जो है सुसाइड किया, और ये हमारे यहाँ जो रेट है कि एवरी 1 लाख पीपल पर 12.4% सुसाइड कर लेते हैं। और दूसरी बात, बड़ी जो चिंता करने वाली बात हमारे यहाँ क्या है कि जो 41% जो सुसाइड हो रही है वो यंग पीपल की हो रही है, अंडर 30 वाले लोगों की। तो on the one side we are arguing in the world that India is the youngest democracy because हमारे पास यंग पीपल की जो पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है, लेकिन हमारे यहाँ जो 41% सुसाइड हो रहे हैं वो यंग पीपल ही कर रहे हैं टोटल जो है सुसाइड्स में से। इफ वी टॉक अबाउट और मोर प्रिसाइज इंफॉर्मेशन, तो हमारे यहाँ एवरी 8 मिनट में एक सुसाइड होती है। तो ये बहुत ही ज्यादा टेंशन की बात है इंडिया के लिए, इस पर हमको काम करना होगा। और इसमें अब बात करते हैं ये कि इसके पीछे फैक्टर्स क्या है। तो ये कहते हैं देयर इज नो सिंगल फैक्टर बिहाइंड द सुसाइड केसेस, बिकॉज जब भी सुसाइड की हम बात करते हैं तो वो एक कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर होता है। ठीक है, और इसको किसी एक फैक्टर पर हम जो डिपेंड नहीं कर सकते, बहुत सारे फैक्टर्स का इसमें इंटरेक्शन होता है। फॉर एग्जांपल उसमें बायोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, मींस बॉडी का जो सिस्टम है उसमें जो हार्मोन्स हैं वो गड़बड़ हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल मेंटल इश्यूज हो सकते हैं किसी के साथ में, फैमिली से रिलेटेड इशू हो सकते हैं, सोसाइटी से रिलेटेड इशू हो सकते हैं, कल्चरल से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। तो बहुत सारे इश्यूज मिल करके सुसाइड के केसेस को लीड करते हैं। इन्होंने फिर से यहाँ पर डेटा दिया है कि देखो टोटल जो सुसाइड हुई हमारे यहाँ, मेंटल हेल्थ की जिनको प्रॉब्लम थी उनमें से 54% सबसे ज्यादा लोग मींस मेंटल हेल्थ वाले हैं जिन्होंने सुसाइड किए। फिर उसके बाद नंबर आता है नेगेटिव और ट्रॉमेटिक फैमिली इश्यूज का, कि जो घर की प्रॉब्लम्स होती है, फैमिली प्रॉब्लम्स होती है, वो सेकंड नंबर पे आता है सुसाइड के केसेस में। ठीक है, जो फैमिली के जो इश्यूज होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, एक आईपीएस ऑफिसर थे, रिसेंट ईयर की ही बात है, और लास्ट में जब शिवरात्रि थी तो शिवरात्रि पर उन्होंने अपनी वाइफ से कहा, उनकी वाइफ बोल रही थी कि हम जो है बर्गर खाएंगे या पिज्जा खाएंगे, और वो खाएंगे हम नॉन वेज, चिकन पिज्जा या चिकन बर्गर। तो उन्होंने आईपीएस ये जो ऑफिसर थे उन्होंने ये कहा कि भाई आप आज शिवरात्रि है, कम से कम आज आप नॉनवेज मत खाइए। तो उनकी वाइफ ने बोला कि नहीं मैं तो खाऊंगी। तो आईपीएस ने कहा कि तुम अगर आज हमारे इस घर में अगर नॉनवेज खाओगी तो मैं जहर खा लूंगा, पॉइजन। तो उसने कहा ठीक है खा लेना जहर। तो इसने, इनकी वाइफ ने जहर खा लिया, वो पिज्जा खाया या जो बर्गर था वो खाया, नॉन वेज वाला, चिकन वाला। तो उधर ये जो आईपीएस थे उन्होंने पॉइजन ले लिया और उनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो इस तरह के जो फैमिली इश्यूज होते हैं, कई बार छोटी छोटी सी चीजें बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर देती है। ठीक है, तो ये वाला केस भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये कह रहे हैं कि जो फैमिली के इश्यूज होते हैं, रिलेशनशिप के इश्यूज होते हैं, वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। बहुत सारे बच्चे एकेडमिक स्ट्रेस की वजह से मर जाते हैं। तो टोटल जितनी भी सुसाइडल डेथ होती हैं उनमें 23% लोग एकेडमिक प्रेशर की वजह से मर जाते हैं। सोशल एंड लाइफस्टाइल फैक्टर की अगर हम बात करें तो अराउंड 20% है। घर में किसी के साथ वायलेंस हुआ है कहीं पर भी तो 22% है। इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, पैसे की कमी, गरीबी, उसकी वजह से 9.1%, और रिलेशनशिप के जो इश्यूज हैं उनमें 9% लोग सुसाइड कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें और भी बहुत सारे इश्यूज हैं, जैसे फिजिकल हो गया, सेक्सुअल हो गया, या एग्जामिनेशन में फेल्योर हो गया,
इंटर जनरेशनल कन्फ्लिक्ट होता है, कई बार परिवार में भी हो जाता है कि जो हमारे सीनियर होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं या ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, वो कुछ और चाहते हैं और बच्चे अपनी न्यू जनरेशन के अकॉर्डिंग कुछ और चाहते हैं। तो उनकी थिंकिंग पैटर्न कुछ डिफरेंट होता है और जो न्यू जनरेशन है उनका थिंकिंग पैटर्न कुछ और होता है। फॉर एग्जाम्पल, कई बार बच्चे क्या करते हैं कि लव मैरिज करना चाहते हैं और वो इंटर कास्ट होती है या इंटर रिलीजियस होती है, तो पेरेंट्स कई बार मना करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, उसमें एक्सट्रीम स्टेप ले जाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो इन केसेस की ये बात कर रहे हैं। अब उसमें से बात करें कि स्पेसिफिक सोशियो कल्चरल फैक्टर्स फॉर सुसाइड अमंग यंग गर्ल्स एंड वुमेन। ठीक है, अब जो विमेन और गर्ल्स की बात करें तो उनके साथ में सोसाइटी के जो इश्यूज हैं, कल्चरल जो इश्यूज हैं, वो भी बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे कई बार जो अरेंज मैरिज है, जल्दी अर्ली मैरिज हो गई, यंग मदरहुड है, मीन्स बहुत कम एज पर ही जो है गर्ल जो है प्रेग्नेंट हो गई और माँ बन गई। तो उसके बाद भी बहुत सारे इमोशनल चेंजेस होते हैं। ठीक है, जब कोई भी गर्ल जो है माँ बनती है तो लो सोशल स्टेटस की वजह से कई बार लोग सुसाइड कर लेते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस भी होता है, इकोनॉमिक डिपेंडेंस होता है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो वुमेन के सुसाइडल टेंडेंसी या सुसाइडल केसेस को इंक्रीज करते हैं। फिर ये बात करते हैं कि देखो अभी हम लास्ट 2022 की अगर बात करें तो देयर वर अराउंड 2095 केसेस थे जिसमें बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने एग्जाम में फेल्योर की वजह से सुसाइडल जो है रूट को जो है सिलेक्ट किया। ठीक है, अब उसमें हमारे यहाँ क्या है, एग्जामिनेशन की जैसे पॉइंट्स हैं कि भाई 1 पॉइंट एग्जामिनेशन सिस्टम, एक ही बार एग्जाम हो गया और उससे पूरी जिंदगी डिसाइड हो गई। ऐसा क्यों होना चाहिए, उसको भी हमें यहाँ पर चेंज करना चाहिए। कई बार पेरेंट्स प्रेशर करते हैं, बच्चा चाह रहा है कि वो मीन्स लीगल सेक्टर में जाना चाहता है, ठीक है, या वो स्पोर्ट्स में जाना चाहता है या साइंस में जाना चाहता है, लेकिन पेरेंट्स कहते हैं नहीं भाई तुमको आईपीएस बनना है, आईएएस बनना है, तुमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है ना। कई बार बच्चा चाहता है कि भाई उसको पेंटिंग अच्छी लगती है, तो वो भी बहुत सारा जो है प्रेशर बच्चों पर बन जाता है। और उसके लिए जैसे हम राजस्थान का जो कोटा है, ठीक है, बच्चों के बहुत सारे सुसाइड के केसेस हमें यहाँ से देखने को मिलते हैं। दूसरी बात यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और निकल करके आता है कि बच्चे कई बार बहुत सारे एग्जाम्स को क्वालिफाई करके प्रोफेशनल कॉलेजेस में एडमिशन ले जाते हैं, लेकिन बाद में एकेडमिक प्रेशर की वजह से वो सुसाइड कर लेते हैं। जैसे आप अगर आईआईटी की बात करें, है ना, तो आईआईटी में बहुत सारे बच्चे क्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, बिकॉज एडमिशन तो उनका हो गया, ठीक है, कई बार इसमें बहुत सारे इश्यूज आए हैं जैसे कि रिजर्वेशन के। तो रिजर्वेशन का जो मैटर है उसमें बच्चे कई बार कम मार्क्स पर भी उनको एडमिशन मिल जाता है, लेकिन जब वो एंटर करते हैं और आईआईटी का अपने आप में एक राइगरस स्टैंडर्ड है जिसमें बहुत ज्यादा स्टडी उनको करनी पड़ती है, एकेडमिक प्रेशर होता है, तो बच्चे कई बार एससी एसटी या अदर कम्युनिटी या अदर किसी भी बेसिस पर उनको रिजर्वेशन मिलता है, ठीक है, कम मार्क्स पर मिलता है या उनको कम मेहनत पर मिल गया, ऐसा कुछ भी हुआ, कोई भी फैक्टर, ठीक है, हो सकता है इसमें जनरल कैटेगरी वगैरह सबके शामिल हो सकते हैं, लेकिन वो एकेडमिक प्रेशर को जब हैंडल नहीं कर पाते तो सुसाइड कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा ये कह रहे हैं कि देखो सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है सुसाइड में। ठीक है, ये कह रहे हैं मेटा एनालिसिस के बेसिस पर कि 19 स्टेट्स ऑफ इंडिया रिवील्ड दैट ऑलमोस्ट 20% ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स आर नेट एडिक्ट्स। किसी भी कॉलेज में चले जाओ उसमें से अराउंड 20% स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनको नेट का एडिक्शन हो गया, उसको छोड़ ही नहीं सकते। 1/3 ऑफ यंग पीपल आर साइबर बुलीड है, कभी ना कभी उनको साइबर बुली उनको हुआ है, मीन साइबर थ्रेट्स वगैरह उनको मिले हैं, और इनमें से 1/3 ही ऐसे हैं जो सुसाइड करते हैं। मीन्स यहाँ पर मीन्स कुल मिलाकर ये कहना चाह रहे हैं कि जिन बच्चों को सोशल मीडिया या जो मोबाइल का एडिक्शन है उन बच्चों के सुसाइड करने के ज्यादा चांसेस होते हैं, बिकॉज वो सोसाइटी से बिल्कुल कट जाते हैं, मोबाइल में ही लगे रहते हैं, तो सोसाइटी के साथ में कोऑर्डिनेशन में रहने की, उसकी चैलेंजेस को फेस करने की जो हमारी कैपेसिटी है वो खत्म हो जाती है। अब उसके कुछ सॉल्यूशन बताते हैं। सॉल्यूशन क्या क्या बताते हैं कि देखो यंग पीपल जो है उनसे हमको क्या करनी होगी, एडवाइस लेनी होगी, हमारा जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उसको चेंज करना होगा, है ना, और क्या करना होगा, उसको हमें रेगुलेशन स्किल्स वगैरह उनमें लानी होंगी कि इमोशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, कि बच्चा अगर कोई भी व्यक्ति है, कोई भी पर्सन है, अगर उसको सुसाइडल टेंडेंसी है या उसको मेंटल इश्यू है तो वो हेल्प मांग ले अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड से, ना कि वो सुसाइड का रूट सेलेक्ट करे। तो ऐसे टॉपिक्स पर हमको सेमिनार्स वगैरह करने होंगे, है ना, और इंटरनेट वगैरह जो यूज कर रहे हैं बच्चे, सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, उससे उनको कंट्रोल करना होगा।
डेली उनको जो है फ्रेंडशिप सपोर्ट मिले, डेली वो कुछ एक्सरसाइज करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, फिजिकल एक्सरसाइज करें, जिम करें, स्पोर्ट्स में जाएं। तो वो सारे काम हमें अपनी सोसाइटी में इनको इम्प्रूव करना होगा अगर हम सुसाइड्स को जो है कम करना चाहते हैं। दूसरा ये कहते हैं कि हमको अल्कोहल कंजम्पशन वगैरह है उसको कंट्रोल करना होगा। अगर हमको सोसाइटी में, देखो अल्कोहल कौन कौन लोग पीते हैं मोस्टली, कई बार वो शौक के लिए पीते हैं, कई बार लोग अपने गम को भुलाने के लिए पीते हैं। कई बार आप मूवीज में देखते हैं तो फलाना आदमी है भाई हीरो और उसको गम हो गया, बैठ करके जा करके शराब पीने लगा। इस तरह की जो टेंडेंसीज हैं जो शो करती हैं कि whenever you are under pressure, मेंटल प्रेशर, सोशल प्रेशर, कल्चरल प्रेशर, इकोनॉमिक प्रेशर, तो आप दारू पिए, सिगरेट पिए और सो जाएं। नो, दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज शुड बी बेन्ड। ऐसे जब भी हमें मूवीज वगैरह में कुछ भी दिखाते हैं तो उनको हमें कंट्रोल करना होगा। एजुकेशन सेक्टर में हमको रिफॉर्म्स करने होंगे, ठीक है। और कहीं भी किसी बेसिस पर जो डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, स्टिग्मा होता है कि भाई सुसाइड का, उन चीजों को भी हमें रिजॉल्व करना होगा कि अगर मेंटल प्रॉब्लम किसी को है, जैसे हमारी बॉडी में कोई दिक्कत हो सकती है वैसे ही हमें मेंटल इश्यूज भी हो सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने एक स्टेप लिया था 2019 में। उन्होंने एक कमेटी बनाई, उसके बाद में नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी उन्होंने बनाई जो 2022 में एप्लीकेबल हो गई और उस पर गवर्नमेंट काम कर रही है। सुसाइडल जो एंटी सुसाइड या सुसाइडल टेंडेंसी में हेल्प के लिए उनकी वेबसाइट्स हैं, कॉलिंग नंबर्स हैं, बहुत सारे एनजीओज हैं, अवेलेबल हैं। ठीक है। फिर आपका ये जो स्ट्रेटेजी उन्होंने बनाई कि 2030 तक हम 10% जो है सुसाइडल केसेस को डिलीट मींस जो है डिक्रीज कर देंगे। अब ये कहते हैं कि जितनी भी हमारी मिनिस्ट्रीज हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, ब्रॉडकास्टिंग, इंफॉर्मेशन, सोशल वेलफेयर, इन सबको आकर के एक साथ में काम करना होगा। और जितने भी हमारे स्कूल्स हैं उनमें स्कूल हेल्थ एम्बेसडर्स बनाने होंगे जो बच्चों की हेल्थ पर काम करें, टीचर्स की हेल्थ पर काम करें। फिर हमें वहाँ पर बहुत सारी जगह पर यूथ क्लब्स बनाने होंगे कि वहाँ पर लोग आए, स्पोर्ट्स गेम वगैरह कुछ खेलें और अपने आप को जो है फ्रेश फील करवाएं। ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट में फिर ये कहते हैं कि हमको इन चीजों के लिए बजट इंक्रीज करना होगा और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, मीन्स सोसाइटी हो गई, एनजीओ हो गई, गवर्नमेंट हो गए, स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, एकेडमिशियंस हो गए, या जो रिलीजियस लीडर्स वगैरह हो गए, उन सबको हमें साथ लेना होगा। तब हम ये जो सोसाइटल जो इश्यूज हैं इनको हम रोक पाएंगे। फिर हमारे पास में है एक बहुत अच्छी न्यूज जो काफी अच्छी भी है और कुछ मैटर्स में अभी हमें इसमें इम्प्रूव भी करना होगा कि अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपना डेटा रिलीज किया कि जब हमारे सेकंड इलेक्शन हुए थे, जनरल इलेक्शन 1957 में, तब हमारे यहाँ वुमेन कैंडिडेट कितनी थी इसमें जनरल इलेक्शन में, और 2019 तक आज तक आते आते हमारे पास कितनी हो गई। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 2019 तक का क्यों बताया जनरल इलेक्शन में, तो देखो 2024 के इलेक्शन जब हो जाएंगे उसके बाद वो डेटा आएगा। तो अभी तक हमारे पास में, बिकॉज लास्ट जनरल इलेक्शन जो हुए थे 2029 में हुए थे, सो दैट्स व्हाई वी हैव ओनली द डेटा अप टू 2019। तो यहाँ पर ये कुछ डेटा हमको दे रहे हैं। देखो यहाँ से कई बार क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है, कि जब हमारे 1957, हालांकि अब आप सोच रहे होंगे कि 57 से पहले तो इलेक्शन हो रखा था, कि 1952 इसमें भी तो जनरल इलेक्शन हुआ था। और तो यहाँ पर हमारे पास में इलेक्शन कमीशन के पास में 1952 का जेंडर बेस्ड डेटा नहीं है, दैट्स व्हाई वी डोंट हैव दिस डेटा। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि देखो जब 1957 का इलेक्शन हुआ था तो 45 वुमेन ऐसी थी जिन्होंने कंटेस्ट किया था, लेकिन अब हम 2019 में चलें तो हमारे पास 726 वुमेन ने क्या किया था, इलेक्शन कंटेस्ट किया था। ठीक है। फिर ये कहते हैं कि द परसेंटेज ऑफ वुमेन इन पार्लियामेंट हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 4.5% टू, देखो 1957 में महिलाओं की संख्या, वुमेन की जो नंबर्स थे वो 4.5% थे, लेकिन 2019 में ये 14.4% हो गया 2019 में। इट मीन्स अच्छा खासा इंक्रीमेंट हुआ है। अब देखो आपके लिए क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं कि इसमें आपसे पूछ सकता है कि 2019 वाली लोकसभा में हमारे पास पार्लियामेंट में कितनी परसेंट वुमेन थी, तो 14.4%। इस तरह से भी क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। ठीक है। फिर ये कह रहे हैं कि नंबर ऑफ मेल कैंडिडेट्स ऑन द अदर हैंड हैज ग्रोन फ्रॉम, देखो जब 1957 का इलेक्शन हुआ तो 1474 पीपल ने इसमें इलेक्शन में कंटेस्ट किया था, लेकिन अब यहाँ देखो 7000 से ज्यादा लोगों ने 2019 में इलेक्शन फाइट किया। ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि देखो
जैसे मेल का जो है कंटेस्टिंग बढ़ा है, कंटेस्टिंग नंबर्स ऑफ मेल्स इंक्रीज हुए हैं, वैसे ही वुमेन का जो नंबर है वो भी 16 फोल्ड मींस 16 टाइम्स बढ़ गया है। पहले जितनी महिलाएं इलेक्शन में फाइट करती थी अब उसका 16 टाइम्स जो है फाइट करती है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने बहुत सारा डेटा दिया है। कुल मिलाकर के ये कह रहे हैं कि और कि देखो वुमेन का परसेंटेज इलेक्शन में फाइट करने में भी बढ़ा है, उनकी जो है विन करके पार्लियामेंट में उनकी नंबर्स भी इंक्रीज हुए हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि अभी भी वो मेल से काफी पीछे हैं। हालांकि एक चीज और है कि जो वुमेन है जब वो किसी इलेक्शन उसमें कॉन्स्टिट्यूएंसी में जब फाइट करती है तो उनके जीतने के चांसेस ज्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी महिलाओं को अभी कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो बहुत ज्यादा प्रिफर करती हो अपने एमएलए या एमपी बनाने में, तो हमको बहुत अभी इस पर काम करना होगा। फिर हमारे पास में न्यूज है कि ओवर 73,000 एप्लीकेशन रिसीव्ड, या रिसीव्ड जो एप्लीकेशन है वो हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए सुविधा पोर्टल। ये सुविधा पोर्टल जो है काफी न्यूज में रहेगा अभी जब तक इलेक्शन चलेंगे। तो सुविधा पोर्टल जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पोर्टल है जिसको यूज किया जा रहा है बहुत सारे कैंडिडेट्स के द्वारा, इलेक्शन जो मीन्स जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके द्वारा, किसके लिए ये ऑनलाइन एप्लीकेशन डालते हैं कि साहब हमको उस जगह पर एक रैली करनी है, वहां पर हमको अपने जो है पोस्टर्स वगैरह के लिए कोई मीन्स मोबिलिटी वैन वगैरह का यूज करना है ना, या हमें कोई टेम्परेरी पॉलिटिकल पार्टी का अपना ऑफिस बनाना है। ठीक है, तो या हमें कोई ग्राउंड है कहीं, जैसे दिल्ली का जंतर मंतर है ना, रामलीला मैदान, तो वहां पर किसी को ऑनलाइन बुकिंग करनी है कि वहां पर साहब हमको जो है अपना रैली करनी है, अपना कॉन्फ्रेंस करनी है, लोगों को बुलाना है, तो उसके लिए इस तरीके से ऑनलाइन एप्लीकेशन दिए जाते हैं, दैट इज सुविधा पोर्टल। तो काफी इससे चीजें इजी हो जाती हैं। फिर है हमारे पास में न्यूज रिगार्डिंग जीएसटी। ठीक है, जीएसटी के रिगार्डिंग में न्यूज ये है कि जो एनसी केलकर थे रिसेंटली जब वो 13 फाइनेंस कमीशन के मेंबर थे, चेयरमैन थे, तो अब उन्होंने क्या किया है, उस समय भी कुछ रिकमेंडेशंस थी, अभी एक कॉन्फ्रेंस वगैरह हो रही थी, उनको एक अवार्ड भी मिला है कोई, ठीक है, TIOL का फिस्कल अवार्ड मिला है इनको। तो इन्होंने अपनी स्पीच वगैरह दी, तो उसकी वजह से जो जीएसटी है वो न्यूज में है, बिकॉज जो टैक्स हमारे फाइनेंस कमीशन है, अगर उनके चेयरमैन इसी बात बोल रहे हैं तो हमें कुछ चेंज करने की रिक्वायरमेंट है। उनका कहना है कि जो हमारा जीएसटी का सिस्टम है इट्स अननेसेसरीली कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसको हमें क्या करना होगा, बहुत इजी करना होगा, बिकॉज जब भी लॉ इजी होता है तो लोग उसको इजीली ओबे भी करते हैं। फिर ये कहते हैं कि हमें जीएसटी काउंसिल के लिए, हमने कल वाले सेशन में भी देखा था, लास्ट सेशन में जीएसटी काउंसिल के बारे में शायद हमने पढ़ा था। ठीक है, तो जीएसटी काउंसिल का हमें अलग से सेक्रेटरीट बनाना होगा। ठीक है, और जीएसटी कब आया था, 2017 में आया था। ठीक है, तो ये यहाँ पर बोल रहे हैं कि स्टेट्स के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, प्लस ये कह रहे हैं कि अगर हमें जीएसटी कलेक्शन को इंक्रीज करना है तो एक तो जो मल्टीपल स्लैब्स हैं, मल्टीपल स्लैब्स कि कुछ ऐसी स्लैब्स हैं कि जिन प्रोडक्ट्स पर 18% जीएसटी लगेगा, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन पर 12% लगेगा, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन पर 15%, ऐसी कुछ स्लैब्स जो बना रखी हैं। तो यहाँ पर ये सजेस्ट करते हैं कि वर्ल्ड के ज्यादातर कंट्रीज में क्या है कि एक सिंगल स्लैब बनी हुई है कि उन सारे के सारे जितने भी प्रोडक्ट हैं उन पर हम एक फिक्स परसेंटेज ऑफ जीएसटी लगा देते हैं। तो ये कह रहे हैं कि भाई हम ऐसा करो, ये स्लैब का सिस्टम है इसको खत्म कर दो और केवल 12% लगा दो सारी चीजों पर, जिससे क्या होगा कि जो जीएसटी का जो मेथड है वो इजी हो जाएगा और लोग जो फ्रॉड करते हैं हाई जीएसटी से बचने के लिए, देखो जब हमारे यहाँ टैक्स अगर इजी होगा और कम होगा, रिड्यूस होगा, तो लोग आसानी से देना भी पसंद करेंगे। सपोज करो आप 100 रुपीज अर्न कर रहे हैं, गवर्नमेंट आप पर टैक्स लगा दे, बोला आपको भाई 80% टैक्स देना होगा, आपके पास 20 रुपए बचेंगे। अब आप क्या ढूंढोगे, तरीके ढूंढोगे कि यार इस टैक्स से कैसे बचा जाए। वहीं अगर गवर्नमेंट क्या करे कि आप 100 रुपीज अर्न कर रहे हैं, आपसे 1% का टैक्स लिया जाएगा, 1 रुपया, ये सारे लोग आराम से क्या कर देंगे, टैक्स देना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर इनका ये कहना है कि देखो हमें जीएसटी में बहुत सारे रिफॉर्म्स करने होंगे, स्लैब्स को हमें सिंगल स्लैब करना होगा और जो टैक्स के रेट्स हैं उनको भी हमें डिक्रीज करना होगा। एक ये बड़ी खतरनाक सी न्यूज है और पूरे वर्ल्ड के लिए चिंता की बात है। देखो ये सूडान का जो एक विलेज था, वहां पर क्या हुआ है, इन्होंने आपस में झगड़े हो रहे हैं, किसमें, सूडान की जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उसमें और सूडान की आर्मी में। बहुत गजब का मामला है ये, मैंने तो अपनी लाइफ में पहली बार ऐसा सुना है। क्या है ये मामला, मैं आपको बता देता हूँ। आप ऐसे समझो कि सपोज करो इंडिया
इंडिया की पैरामिलिट्री फोर्सेस जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, ये सब क्या है? पैरामिलिट्री फोर्सेस। मिलिट्री फोर्सेस हो गई आपकी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। सूडान में क्या हो रखा है कि वहां की आर्मी और सीआरपी जैसे वहां की पैरामिलिट्री फोर्सेस है, ठीक है, उनका ही आपस में युद्ध चल रहा है। सपोज करो कि अगर इंडिया में ऐसा हो जाए तो क्या मतलब, आप समझ जाएंगे ना कि हमें क्या बताना चाह रहा हूँ। ऐसी सिचुएशन अभी सूडान में चल रही है। तो जस्ट हैव सम नॉलेज अबाउट सूडान, उसकी कैपिटल वगैरह कहाँ पर है। फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारे पास में ऑस्ट्रेलिया के और यूके और ब्रिटेन, यूएस, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया, इनके रिगार्डिंग में। ये क्या है? ऑकस। ये चाह रहे हैं कि ऑकस का जो सिक्योरिटी पैक्ट है हम उसको एक्सपेंशन उसका करें, जिससे कि चाइना को हम क्या कर सके? काउंटर बैलेंस कर सकें। ऑकस है क्या? ऑकस मींस ए का मतलब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम और यूएस का मतलब यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इन तीनों का एक ग्रुप है और इन तीनों ने ग्रुप बनाया था 2021 में, किसको काउंटर करने के लिए? चाइना को काउंटर करने के लिए। अब ये बात इस बात पर कर रहे हैं कि यार हम केवल 3 कंट्री हैं, ऐसा करते हैं इसमें अदर कंट्रीज को भी हम इसमें क्या करते हैं? इंक्लूड कर लेते हैं। तो इस पर इनकी बात चले तो आपको बस ये पता हो, एक तो ऑकस क्या है, तो एक सिक्योरिटी जो है पैक्ट है जिसमें यूएसए, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया है। अभी फिलहाल ये कह रहे हैं कि चलो यार, बिकॉज देखो जापान और चाइना इन दोनों का कैसा आंकड़ा रहता है? 36 का, ठीक है। तो इनका आंकड़ा 36 का रहता है। तो ये कह रहे हैं कि चलो यार जापान को भी मिला लेते हैं हम चाइना के अगेंस्ट में अपने इस ऑकस ग्रुप में, ठीक है। 2021 में ये बना था और ये पूरा एक ग्रुप है। ये हो गई इसकी इंपॉर्टेंट न्यूज के क्या हमारे पास में था। तो अभी हमारे पास में जो था, हमने कई सारी न्यूज आज डिस्कस कर ली। नाउ फॉर टुमारो आपको क्या करना है? इनको ठीक से पढ़ लेना है। इसमें से बेसिक से क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं वो आपको प्रिपेयर करने हैं, अपने नोट्स बना लेने हैं। तो नेक्स्ट वाले सेशन में हम यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू बनाएंगे और उन एमसीक्यू से इनको रिवाइज करेंगे और नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।